हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये मॉड्यूल 2 है। पिछली वीडियो में मॉड्यूल 1 पढ़ाया था फूड सेफ्टी का। ये मॉड्यूल 2 है जिसे हैसप कहते हैं, HACCP। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट HACCP stands for, list the 7 principles of HACCP, describe different types of hazards that can affect food safety, explain ways to control bacterial growth, list some low and high risk foods, discuss effective ways to store food to avoid spoilage, list the steps involved in making sure your hands are as clean as possible in the workplace. आगे बढ़ते हैं नाजरीन। हैसप क्या है? It is an industry standard preventive system designed to give a high level of food safety assurance. As such, the law requires all food handling premises to implement a food safety management system based on the principles of HACCP. Before a food handling business or facility becomes operational, a specialist or team of specialists will be required to put a HACCP system in place. The specialist could be a single work colleague, a manager, or an external team brought in by your company. It doesn't matter as long as the person or people implementing the system have been properly trained in that role. They will assess every stage of the food handling process from the moment food arrives on the premises to the moment it leaves or is served to a customer. They look at each step along the food handling chain in order to highlight the key hazards involved in each and will then put into place critical control points designed to minimize the risk of food contamination throughout the entire process. So put simply, HACCP identifies food safety risk and puts measures in place to control them. अच्छा जी, 7 प्रिंसिपल्स क्या है HACCP के? नंबर 1 है इनिशियल एनालिसिस। Initial analysis involves carefully examining every stage of the food handling process for all food items, from initial delivery to storage, preparation, chilling, and so on, in order to determine how and where food safety hazards could arise and to assess the level of risk they pose. Once this is non-critical control points can be introduced in order to prevent those hazards from being a threat to the customer. A hazard is anything harmful or unwanted within a foodstuff that could cause injury, illness, or discomfort. Remember, there are 4 main categories of food safety hazard. अच्छा जी, पहला था इनिशियल एनालिसिस, प्रिंसिपल नंबर 1। केमिकल है, 4 मेन कैटेगरीज ऑफ फूड सेफ्टी हैजर्ड। केमिकल, फिजिकल, ठीक है, और फिजिकल के बाद माइक्रोबायोलॉजिकल, और फिर है एलर्जेनिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 है डिफाइन CCPs, यानी कंट्रोल critical control point. A critical control point is the last point in the food handling process where a hazard can be controlled. It is not necessarily the point at which the hazard was introduced. It is the point at which the hazard must be dealt with in order to eliminate any risk to public health. A CCP could be linked to a number of different factors such as time होना चाहिए, सही टाइम पे चीज़ पकनी चाहिए, ठीक है, सही टाइम पे स्टोर होनी चाहिए फूड सब्जेक्ट टू हॉट है, होल्डिंग कैसे होनी चाहिए, सही। हॉट फूड दैट इज़ नॉट सर्व इमीडिएटली आफ्टर कुकिंग मस्ट बी हेल्ड एट अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 63, यानी कि गर्म फूड इतना नहीं होना चाहिए 63 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, एंड कैन बी होल्ड फॉर नो लॉन्गर देन 2 hours. सो अ CCP हेयर वुड बी द होल्डिंग टाइम. Records must be kept of the time hot holding began and the time the food was removed from holding. Hot holding for more than 2 hours is deemed dangerous, making the holding time a critical control point. ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है टेम्परेचर. Temperature, using the same example, food that is held hot for service must be kept at a minimum of 63 Celsius. Should the temperature drop below 63 Celsius, the risk of spoilage would increase. So a record must be kept of the core temperature of hot held food at the point of display and at regular intervals up to its 2-hour display unit. Date labeling है नाजरीन. Date labeling है, foods must be labeled clearly at all stages of the food handling process. This is so that anyone who uses that foodstuff knows how long it has been there and whether it is fit for purpose. So all deliveries must be documented, goods must be labeled in storage, and processed foods that are not for immediate consumption must be labeled as must goods that are displayed for sale. Gatekeeping food is not just at risk of contamination whilst in your possession. It may already have been contaminated before it arrived with you. This is why all goods deliveries must be checked and documented by ensuring that food is at the correct temperature, in good condition, and has been correctly stored at the point of delivery. You minimize the chance of contamination occurring in your own place. ठीक है नाजरीन, 4 क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है. प्रिंसिपल नंबर 3 है सेट लिमिट्स.
लिमिट सेट करनी है आपको, सही है। इसमें जो है वो सिर्फ लिमिट सेट करनी होती है। सिंपल है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। प्रिंसिपल नंबर 4 है मॉनिटर, यानी कि मॉनिटरिंग करनी है आपने कि सही तरह सब कुछ हो रहा है इसमें, यानी हो रहा टेम्परेचर सही है, टच हैंडलिंग सही है। इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा नाजरीन, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है रेमेडियल एक्शन। इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। एक नज़र इसको दोबारा से मैं आपको यूँ कर रहा हूँ ताकि आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। अच्छा जी, वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई क्या है, सिस्टम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, चूल्हे वूल्हे सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऑडिट होने चाहिए। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 6, ऑडिट, ठीक है। 7वां है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग। Finally, for the system to function properly, a clear and truthful record of all actions must be kept. सही record will provide evidence of control system, corrective actions, improvements being ये सारे record होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हुआ है नहीं। ये हमारे पास फूड सेफ्टी, हैजर्ड्स एंड कंटामिनेशन। फूड कंटामिनेशन क्या होता है? Is the presence or in food of any unwanted or objectionable substance or matter which may or may not cause illness. A food safety hazard is any form of food contamination which is likely to cause harm, foodborne illness or injury to a consumer or customer. अच्छा जी, फिर क्या hazards can affect food safety at any stage in the food handling process. This is why critical areas where hazards are most likely to occur must be identified and CCPs put into place. Failure to control hazards could result in unfit or spoiled food, foodborne illness, injury, complaints, loss of revenue, reputation, prosecution, ठीक है। ये हाँ, फूड सेफ्टी रखनी है, हर मामले में फूड सेफ्टी रखनी है ना, से बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स होते हैं? हैजर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज: केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, एलर्जेनिक। ये होते हैं केमिकल हैजर्ड्स। कौन कौन से होते हैं? दे कुड इंक्लूड केमिकल हैजर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंटामिनेशन बाय नॉन, दे कुड इंक्लूड पेस्टिसाइड्स, ग्रीस, ऑयल, क्लीनिंग केमिकल्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। केमिकल हैजर्ड्स ये होते हैं। फिजिकल हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ग्लास हो सकता है, ग्लास का टुकड़ा हो सकता है, मेटल, क्लॉथिंग फ्रैगमेंट्स, परफ्यूम, हेयर नेल्स, ठीक है। परफ्यूम नहीं, क्लॉथिंग फ्रैगमेंट्स यानी कि कपड़े का धागा, इस तरह, ठीक है। पेंट, जै पैकिंग, ये हमारे सारे कहलाते हैं फिजिकल हैजर्ड्स, जिससे कंटामिनेशन हो जाती है। फिर कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स, चीफली बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट और वायरसेस भी हो सकते हैं, यानी कि फंदी जिसे कहते हैं, ठीक है, ईस्ट, वायरसेस वगैरह, ठीक है, बैक्टीरिया कहलाता है। अच्छा जी, below is a list of where some pathogens and spoilage causing microorganisms might come from. कच्चे अंडे से आता है, पोल्ट्री से आता है। दीज वर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सैल्मोनेला, बैक्टीरिया होता है जो कच्चे फूड और पोल्ट्री, तो इसलिए बोलते हैं। रॉ मीट, वेजिटेबल एंड फिश में होते हैं ये, ठीक है, बैक्टीरिया। तो पोर्क हो गया, इसमें अनवॉश्ड रॉ वेजिटेबल्स, रेड मीट, कच्चा लाल गोश्त, धुली हुई नहीं, बगैर धुली हुई सब्जियां, ठीक है। फ़िश एंड शेल फ़िश, कच्ची, अनपेस्चराइज्ड मिल्क, ना उबला हुआ मिल्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, सही है। धोना है, सब चीज़ गोश्त ला कर धोना है, पानी साफ़ सुथरा होना है, ठीक है। सॉइल एंड डर्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एलर्जेनिक हैजर्ड्स, एलर्जेनिक हैजर्ड्स में क्या होता है? वीट से होता है, सेसमी सीड्स होता है, जैसे एलर्जी जिसे कहते हैं, एलर्जी हो जाती है किसी को, सोया से एलर्जी है, मिल्क, दूध से, ग्लटन से एलर्जी है, ये सारी, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोलिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, तो ये नाज़रीन कंट्रोलिंग बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या है आपका? बैक्टीरिया सुपर ब्रीडर्स, they are known as some of the fastest breeding organisms in nature and given the right conditions could grow and multiply at any time. मल्टीप्लाई होते रहते हैं ये, ठीक है।
A single bacterium can grow and divide into two identical cells in just 20 minutes, 10 to 20 minutes. तो ये नाजरीन इसकी कहानी. Pathogenic bacteria favor moist, low acidity, protein-rich foods on which to settle and breed. Their ideal temperature is 37 degrees Celsius, which is human temperature. In order to grow and multiply, they require. अच्छा जी. फूड, मॉइस्चर, टेम्परेचर और फिर टाइम. Some bacteria require oxygen and some require a lack of it. As bacteria favor protein-rich foods, these are considered high-risk items to consume. High-risk foods include cooked fish, shellfish and meats, egg dishes, dairy produce, salads, cooked rice. ये सारी चीज़ें हैं जो ख़तरनाक है बैक्टीरिया आदमी से. ठीक है. चलिए. Bacteria also favor low acidity levels, which is why vinegar has for a long time been used as a food preservative. Salt, ये सारे बैक्टीरिया हैं. ठीक है. हाँ, इनमें भी बैक्टीरिया आया था तो ये है. अच्छा जी. टेम्परेचर क्या है? परफेक्ट टेम्परेचर बैक्टीरिया के बढ़ने का है 37 डिग्री सेल्सियस. हायर टेम्परेचर्स कैन किल बैक्टीरिया, लोअर टेम्परेचर्स कैन इनहिबिट ग्रोथ. यानी कि जो हायर टेम्परेचर उसमें बैक्टीरिया मरता है, जो लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू है. अच्छा, एक चीज़ है इसमें कि फॉर दिस रीजन टेम्परेचर इन कंसीडर्ड मोस्ट डेंजरस लाइज बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 63 डिग्री सेल्सियस. ये बड़ा ख़तरनाक इसमें बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई होता है. अच्छा, तो टेम्परेचर रेंज इज़ यूज फॉर कैनिंग. ये सारे टेम्परेचर हैं नाज़रीन, इसको पढ़ लीजिएगा. 5 डिग्री से 63 डिग्री सेल्सियस ये डेंजर जोन कहलाती है. इसमें बैक्टीरिया जो है ना मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. या तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 63 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो. 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 63 डिग्री सेल्सियस तक बैक्टीरिया जो है ना डेंजर जोन कहलाती है. इसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. नेक्स्ट, बैक्टीरियल स्पोर्स. ये सारे बैक्टीरियाज हैं, इनमें बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा. कंट्रोलिंग बैक्टीरिया, देयर आर 2 मेन वेज, यानी कि 2 तरीके हैं, हीट और केमिकल्स. हीट इज़ द बेस्ट वे टू वी हैव टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया. ठीक है. ज़ाहिर बात है 75 डिग्री सेल्सियस से फॉर 30 सेकेंड्स डिस्ट्रॉय मोस्ट पैथोजेंस. मर जाते हैं. अगर 75 डिग्री सेल्सियस पे फूड को पकाएं तो मर जाते हैं बैक्टीरिया उसमें ज़्यादातर. ठीक है. अच्छा जी. कुक मीट्स एंड पोल्ट्री टू अ मिनिमम कोर टेम्परेचर ऑफ 75 फॉर 30 सेकेंड्स. अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे पकाने तो 2 मिनट के लिए. कीप फूड कूल बिलो 5 डिग्री से, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने चाहिए. और फ्रोज़न करना है -18 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. कूल हॉट फूड्स क्विकली through the danger zone 5 degrees Celsius. Badly use a blast chilling unit. Defrost frozen foods in a refrigerator. Defrost meat and poultry thoroughly before cooking. Keep hot cooked food above 63 degrees Celsius. Cross contamination is a word you will hear a lot in food handling businesses. ठीक है. Simply it is the transfer of microorganisms between food equipment or services. अच्छा जी. इसको पढ़ लीजिएगा नाजरीन, पहले भी थोड़ा सा समझा चुका हूँ आपको. सही है. आगे बढ़ते हैं. देयर आर सम वेरी सिंपल इफेक्टिव वेज टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन सच एज ऑलवेज वॉश हैंड्स, कीप रॉ कुक रेडी टू ईट फूड सेपरेट, यानी कि कच्चा गोश्त अलग रखें और पका हुआ गोश्त अलग रखें. क्लीन एंड डिसइंफेक्ट इक्विपमेंट, साफ़ सफाई रखें. क्रिएट सेफगार्ड थ्रू गुड डिज़ाइन इंटेलिजेंट. अच्छा, डिज़ाइन डेजिग्नेट सेपरेट एरियाज़ ऑफ रॉ, यानी कि कच्चा गोश्त अलग तरीके से उसको सेपरेट करें, उसको वर्किंग करें उसकी, और रेडी टू ईट फूड्स की अलग होनी चाहिए. बर्तन अलग रखें, वो छुरियाँ यूटेंसिल्स यानी कि सामान जो होता है किचन का वो अलग हो. कुक का अलग होना चाहिए, रॉ का अलग होना चाहिए. इंश्योर दैट एनी स्टाफ सफरिंग फ्रॉम कंटेजियस और हाई रिस्क इलनेस आर केप्ट अवे फ्रॉम फूड हैंडलिंग ड्यूटीज़. जो अगर बीमार हो थोड़ा सा उसको फूड हैंडलिंग से दूर रख दें. यूज़ कलर कोडेड इक्विपमेंट
कलर कोडेड इक्विपमेंट होनी चाहिए सच एज नाइफ्स, चॉपिंग बोर्ड्स फॉर पर्टिकुलर फूड्स। सही है। अच्छा जी, कलर कोडिंग क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए, जो आपका चॉपिंग बोर्ड होता है जिसको आप कटिंग बोर्ड भी कहते हैं। कलर कोडिंग है मोस्ट कॉमन, रॉ मीट की लाल है, रॉ फिश की जो है वो ब्लू है। ठीक है नाजरीन, कुक मीट जितना भी कोई सा भी कुक मीट हो उसका येलो है। सैलेड एंड फ्रूट की ग्रीन है, वेजिटेबल्स की ब्राउन है, और बेकरी बेकरी एंड डेयरी की है वाइट। सही है नाजरीन, तो ये कलर कोडिंग है ताकि कोई मसला ना पैदा हो, ये उसका है चॉपिंग बोर्ड और कटिंग बोर्ड जिसे कहते हैं। ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेजर्वेशन एंड स्टोरेज, ये बैक्टीरिया जो है टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना बैक्टीरिया जो है वो स्मेल थोड़ी सी चेंज होगी, टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अपीयरेंस, टेक्सचर और कलर। When spoilage occurs, the food may not necessarily be harmful, but it's still unfit to eat. अच्छा जी, ये है नाजरीन, पहले भी पढ़ चुका है इसको, ऐसे के अंदर दोबारा है। प्रेजर्वेशन करनी है नाजरीन इसकी। पहले ज़मानों में प्रेजर्वेशन होती थी फूड की, पिकलिंग से, ब्राइनिंग कर देते थे, सॉल्ट नमक लगा के फ्रीज कर लेते थे, ड्राइंग कर लेते, तो ये सारी प्रेजर्वेशन। चिलिंग फ्रीजन कैसे करना है? बोथ रॉ एंड कुक फूड कैन बी चिल्ड फ्रोजन, रिड्यूसिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अलग अलग रखना है। ठीक है नाजरीन। केमिकल्स, सॉल्ट, ब्राइन, ये सारे केमिकल्स। कैनिंग हो सकती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। पेस्चराइजेशन है, अच्छा जी, स्टेरिलाइजेशन है, ड्राइंग है, एयर रिमूवल का प्रोसेस है, स्टोरेज है नाजरीन, कैसे आपने स्टोरेज के बारे में बताया गया है, पढ़ लीजिएगा इसको, कैसे इसकी स्टोरेज की जाती है। ठीक है नाजरीन। फीफो मेथड यूज़ होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये होता है कि जो आपने पहले सामान लाए थे ना वो आपने पहले निकालना है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल 1 महीने में आप बर्गर पड़े हुए, बंद पड़े हुए, अब 1 महीना हो गया, अब आप नए भी आ गए, आपके पास नया स्टॉक आ गया, लेकिन आप वो लगाए तो आपने 31 को एक स्टॉक आ गया, आप फॉर एग्जांपल आपके पास महीने की आखिर तारीख को एक बर्गर और आ गया, स्टॉक आ गया, तो आपने वो वाले बर्गर यूज़ करने पहले जो सब पहले आए थे। ठीक है, आपने लास्ट वाले पहले यूज़ नहीं करना, लेकिन पहले वाले पहले यूज़ करने। ठीक है, ये तो ये नाजरीन ये चीज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये टेस्ट में आपकी आएगी। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, बार बार टेम्परेचर के ऊपर गौर दिया जा रहा है नाजरीन, तो ये बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर फूड का ज़रूर अब याद रखिएगा। डेंजर जोन जो है 5 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होती है, सॉरी 63 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होती है, ये वो कहलाती है, डी कहलाती है डेंजर जोन। ठीक है नाजरीन। सर्विंग होनी चाहिए कोल्ड फूड की बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, हॉट फूड की होनी चाहिए अबव 63 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए। ठीक है, ये है समरी क्या है? कुक और हीट फूड टू मिनिमम कोर टेम्परेचर ऑफ 75 फॉर 30 सेकेंड्स, ओनली रीहीट फूड वंस, बार बार उसको खाने को गर्म मत कीजिए अगर फ्रिज में पड़ा हुआ है खाना है। अच्छा जी, चिल कुक फूड एज क्विकली एज पॉसिबल, डिस्प्ले हॉट फूड्स एट अ मिनिमम ऑफ 63, for display cold food at a maximum of 5 degree, frozen food should be stored at -18 degree or below, defrost frozen food in a controlled way, not at room temperature, रूम टेम्परेचर में defrost नहीं करें, जो कि घरेलू औरतें जो हैं वो घर की खातून जो हैं वो गोश्त निकाल के बाहर रख देती हैं, उसमें बैक्टीरिया बढ़ मल्टीप्लाई होता रहता है, वो defrost करना ज़रूरी है उसको। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे defrost नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, बार बार पर्सनल हाइजीन पे ज़ोर दिया जा रहा है। अपने आपके कान साफ़, हाथ साफ़ होने चाहिए, नाखून आपके, नेल्स जो हैं वो प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए, उनकी गुड हाइजीन होनी चाहिए। तो ये है।
वॉश योर हैंड्स विद वाटर। अच्छा जी। स्टेप नंबर 2 है अप्लाई सोप। रब बोथ ऑफ योर पाम्स टुगेदर। ये सफाई करने का तरीका बता रहे हैं आपकी, उसको देख लीजिएगा, नजर पढ़ लीजिएगा एक नज़र। स्टेप 6 है, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10, स्टेप 11, स्टेप 12। ये नजर, you should follow this process regularly throughout the day and always before you begin to work, before handling food, before eating or drinking, between handling raw and cooked foods, between handling money and handling food, between moving from one activity to another, after using the toilet, after handling any raw foods, after coughing, sneezing, सारे ये सही है, ईटिंग, स्मोकिंग, सारे हर दफ़ा हाथ धोने आप, ठीक है। ये रूटीन होनी चाहिए आपकी, बार बार अपने हाथ धोने। अच्छा, की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं नाज़रीन। की पॉइंट्स हैं इनिशियल एनालिसिस, डिफाइन, सीसीपी, ये सारे की पॉइंट्स हैं साथ आपके, ठीक है। 4 तरीके के हैज़र्ड्स डिवाइड होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो है नेक्स्ट असेसमेंट होगी और उसमें जो है फिर आपको टेस्ट दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए।